Assalamualaikum students, how are you all? I'm your English teacher. I really hope that you all are fine, staying at home and staying safe. First of all, I would like to inform you that kindly cover your books and copies. I will cover my book and copy as well. And secondly, take out your books and open page number 2. Page number 2, unit number 1. Pippi Longstocking. The very first thing we will do is we will read the above column words to know. Number 1 is braided, means plaited, यानी एक के ऊपर एक. ब्रेड कहते हैं चोटी को, ठीक है, जो यूजुअली गर्ल्स अपने बालों में बांधती हैं, ठीक है. प्लेटेड यानी वो एक के ऊपर एक बालों की लेयर उनकी आई होती है. कैनिबल, समवन हु ईट्स अदर पीपल, एक ऐसा जानवर जो दूसरे लोगों को खाए. करेज, ब्रेवरी, द एबिलिटी टू डू समथिंग दैट फ्राइटन्स यू, यानी बहुत बहादुरी का काम. फ्रेकल्स, स्मॉल पैचेस of darker color on skin, often made darker by the sun. हमारी फेस पे छोटे छोटे जो झाइयाँ पड़ जाती हैं या डार्क पैचेस पड़ जाते हैं उन्हें कहते हैं फ्रेकल्स. रिमार्केबल, समवन और समथिंग वर्थ नोटिसिंग, काबिल तारीफ चीज़. साइडवॉक, a pathway at the side of the road. सड़क के किनारे की जो जगह होती है ना, जिसे हम फुटपाथ भी कहते हैं, उसे साइड वॉक भी कहा जाता है. स्टॉकिंग्स, वेरी लॉन्ग सॉक्स, बहुत लंबे लंबे जो सॉक्स होते हैं उन्हें स्टॉकिंग्स कहा जाता है. तो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू रीड आवर चैप्टर. When Pippi entered Villa Villicula for the first time, it was a lovely summer evening. The children next door, Tommy and Annika, were not at home. They had gone to visit their mother for a week. Their grandmother for a week. And so they had no idea that anybody had moved into the house next door. Okay, student. पिपी जब अपने घर विली विलिक्यूला में आई थी तो समर्स की जो है वो शामें थी और उनके नेक्स्ट डोर यानी उसके बराबर वाले घर में दो बच्चे रहते थे जिनका नाम था टॉमी एंड आनिका. वो लोग अपनी दादी या नानी को देखने गए थे, जिसकी वजह से उन्हें नहीं पता था कि उनके घर के बराबर में कोई आया है रहने. वन ऑफ द फर्स्ट आफ्टर they came home again, they stood by the gate, looking onto the street. They had no idea that there actually was a playmate so near. They were standing there considering what they should do and wondering whether anything exciting was likely to happen, or whatever it was going to be one of those dull days when they couldn't think of anything to play. And just then the gate of Villa Villicula opened and a little girl stepped out. She was the most remarkable girl Tommy and Annika had ever seen. She was Miss Pippi Longstocking out for her morning walk. This is the way she looked. Okay, students. एक दिन जब वो लोग अपने घर के गेट के बाहर खड़े हुए थे, कौन? टॉमी एंड आनिका, और सड़क पे देख रहे थे, तो वो यही सोच रहे थे कि क्या हमारा आज का दिन वैसे ही जाएगा जैसे रोज़ का जाता है, यानी डल, बोरिंग, बहुत ही उदासी भरा, या कुछ एक्साइटिंग होगा भी. वो लोग ये सोच ही रहे होते हैं कि इतने में बराबर वाला घर विलिक्यूला का गेट खुलता है और उसमें से वो गर्ल जो है वो बाहर निकलती है.
जिसका नाम होता है पिपी लॉन्ग स्टॉकिंग। वो घर से बाहर निकलती है और वाकई वो काबिल तारीफ़ होती है। टॉमी और आनिका ने कभी एक कोई ऐसी लड़की नहीं देखी होती। वो अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही होती हैं और मिस पिपी लॉन्ग स्टॉकिंग कुछ इस तरह की नज़र आती हैं। हर हेयर द कलर ऑफ अ कैरेट was braided in two tight braids that stuck straight out. Her nose was the shape of a very small potato and was dotted all over with freckles. It must be admitted that the mouth under this nose was very wide one, with strong white teeth. Her dress was rather unusual. Pippi had made it herself. She had meant it to be blue, but there wasn't quite enough blue cloth. So Pippi had sewed little red pieces on it here and there. On her long thin legs she wore a pair of long stockings, one brown and the other black. She had on a pair of black shoes that were exactly twice as long as her feet. Her father had bought these shoes for her in South America so that Pippi would have something to grow into. She loved them and she never wanted to wear any other. ओके स्टूडेंट्स, इसमें बताया गया है कि पिपी किस तरह से दिखाई देती थी। उसके दोस्त ने चोटी बांधी हुई थी लंबी लंबी, और उसके बाल जो थे वो कैरेट ऑरेंज की तरह थे। जैसे कैरेट के होते हैं ना, कैरेट ऑरेंज कलर की भी होती है जब थोड़ी सी पकी हुई नहीं होती है, ठीक है। और उसने जो है उन दोनों बालों की चोटी बांधी हुई थी। उसकी नोज़ जो थी सॉर्ट ऑफ पोटैटो, आलू की तरह थी, थोड़ी सी गोल गोल। और उसकी स्किन जो है वो उसकी स्किन पर फ्रेकल्स पड़े हुए थे, मीन्स के पैचेस पड़े हुए थे ब्लैक ब्लैक से। और उसने जो है वो एक ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ था। उसका बड़ा सा फेस और बड़ी सी स्माइल उसकी थी। तो जब उसने ब्लू कलर का सूट अपना बनाया तो उसमें से थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ गया। तो जब कपड़ा कम पड़ा, व्हाट शी डिड, शी जस्ट इंक्लूड द रेड पैचेस ऑन इट। उसने छोटे छोटे रेड कलर के जो है वो टुकड़े लिए और उनको वहाँ पे ड्रेस पे चिपका दिया, ठीक है। उसके बाद उसके पास और क्या था, उसने जो है वो बड़ी बड़ी सी लॉन्ग स्टॉकिंग कहते हैं बड़े सॉक्स को, ठीक है ना। उसने वो सॉक्स पहने, एक उसका ब्राउन था और एक उसका ब्लैक था, उसका वो सेम नहीं था। और उसके पास उसने शूज़ पहने हुए थे जो उसके पाँव से एग्जैक्टली 2 साइज़ बड़े थे, ठीक है स्टूडेंट्स। और वो शूज़ वो क्यों पहनती थी, क्योंकि वो शूज़ उसके फादर ने उसे ला के दिए थे जब वो साउथ अमेरिका में रहती थी, और उसे इसलिए वो बहुत पसंद थे। और उसके फादर चाहते थे कि उसके पास कोई एक ऐसी चीज़ हो जिसमें रह के वो बड़ी हो। But the thing that made Tommy and Annika open their eyes widest of all was the monkey sitting on the strange girl's shoulder. It was a little monkey dressed in blue pants, a yellow jacket, and a white straw hat. Okay, students. सब चीज़ें तो ठीक थी, लेकिन जब सबसे ज़्यादा उन बच्चों की टॉमी और आनिका की आंखें खुली वो किस बात पे, कि वो जो लिटिल गर्ल थी उसके शोल्डर पे, उसके कंधे पे एक मंकी बैठा हुआ था जो बाकायदा ड्रेसअप हुआ हुआ था। और ड्रेसअप हुआ हुआ था कौन से कपड़ों में, ब्लू कलर की पैंट्स में और येलो कलर की जैकेट में। ओह माय गॉड, विद अ स्ट्रॉ हैट, और उसके सर पे एक हैट भी थी। Pippi walked along the street with one foot on the sidewalk and the other in the gutter. Tommy and Annika watched as long as they could see her.
In a little while, she came back, not, and now she was walking backward. That was because she didn't want to turn around and get home. When she reached Tommy's and Annika's gate, she stopped. So students, what happened next? पेपी जो है वो वॉक करते हुए जा रही थी. उसका एक पाँव जो था वो फुटपाथ पे आ रहा था और एक पाँव उसका गटर लाइन पे जा रहा था. ठीक है. टॉमी और आनिका उसे घूरते रहे जब तक वो उसे घूर सकते थे. देखते रहे. इतने में पेपी जो है वो दोबारा पलट के आई. लेकिन वो वापस कैसे आई? वो वापस उल्टे कदमों से आई. लाइक अगर हम वापस आएंगे तो हम टर्न होके आएंगे ना. नो, शी डिडंट टर्न अराउंड. वो वैसे ही बैकवर्ड चलती हुई आई और टॉमी एंड आनिका के घर के पास रुक गई. द चिल्ड्रन लुक्ड एट ईच अदर इन साइलेंस. एट लास्ट टॉमी स्पोक. व्हाई डिड यू वॉक बैकवर्ड? बच्चे जो है खामोशी से देखते रहे एक दूसरे को. फिर आखिरकार टॉमी ने उससे पूछ ही लिया कि तुम बैकवर्ड चल के यानी उल्टे पाँव चल के क्यों आई? उल्टे कदम तुमने क्यों चले? Why did I walk backwards? said Pippi. पिपी ने कहा कि मैं उल्टे कदम क्यों चली? Isn't this a free country? क्या ये एक खुद मुख्तार और फ्री कंट्री आज़ाद मुल्क नहीं है? Can't a person walk any way she wants to? Let me tell you that in Egypt everybody walks that way and nobody thinks it's the least bit strange. वो कहती है मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ कि क्या तुम्हें ये नहीं पता इजिप्ट में सब लोग ऐसे ही चलते हैं. और इसमें क्या मसला है कि अगर एक लड़का या एक लड़की उल्टे कदमों से चल रहा है और इजिप्ट में क्योंकि सब ऐसे ही चलते हैं तो वहाँ पे इस चीज़ को अनोखा नहीं समझा जाता या अजीब नहीं समझा जाता. How do you know? asked Tommy. You have never been to Egypt, have you? कहते तुम्हें कैसे पता? क्या आप कभी गई हैं इजिप्ट? आप तो कभी इजिप्ट नहीं गई होंगी. I've never been to Egypt. Indeed, I have. मैं वाकई इजिप्ट नहीं गई. क्या मैं इजिप्ट नहीं गई? वाकई में मैं नहीं गई. That's one thing you can be sure of. और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में तुम 100% यकीन के साथ कह सकते हो. I've been all over the world and seen many things stranger than people walking backward. I wonder that what you would have said if I had come along walking on my hands way they do in farthest Asia. Okay students, यहाँ थोड़ा सा मैस हो गया. उसने कहा मैं इजिप्ट नहीं गई. इंडीड आई हैव. मैं तो गई हूँ. और एक यही चीज़ है जिस पे तुम यकीन कर सकते हो. मैं पूरी दुनिया में घूमी हूँ और मैंने बहुत सारी स्ट्रेंज चीज़ें देखी हैं जैसे कि उल्टे पाँव चलना, हाथों के बल चलना, जैसे सब फारदेस्ट एशिया में लोग चलते हैं. Now you must be lying, said Tommy. टॉमी ने कहा कि अब तो तुम वाकई ही झूठ बोल रही हो. Pippi thought for a moment. You are right, she said sadly. I'm lying. Pippi ने थोड़ी देर सोचा. फिर उसने कहा कि हाँ तुम सही बोल रहे हो. मैं झूठ बोल रही हूँ. It's wicked to lie, said Annika, who had at last gathered up enough courage to speak. उसने बोला कि झूठ बोलना एक बुरी आदत है. आनिका ने यह बात बहुत हिम्मत के साथ बोली. Yes, it is very big to lie, said Pippi even more sadly. और पिपी ने ये चीज़ और उदासी से बोली कि हाँ बिल्कुल झूठ बोलना वाकई बुरी बात है. And how can you expect a little child like me to always tell the truth when my mother is an angel and my father is a king of Cannibal Island and I have sailed on the oceans all my life? Then Pippi smiled and continued. And let me tell you that Pippi smiled and continued, and let me tell you that in the Congo there is not
a single person who tells the truth. They lie all day long, begin at 7 in the morning, and keep on until sundown. So if I should happen to lie now and then, you must try to excuse me and to remember that it is only because I stayed in the Congo a little too long. We can be friends anyway, can't we? Okay students, इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि वो पिपी जब आनिका उसे कहती है कि झूठ बोलना बुरी बात है, इट्स अ बैड हैबिट, तो वो पिपी जो होती है वो कहती है हाँ बिल्कुल ये बहुत बुरी आदत है, लेकिन एक छोटी सी बच्ची जो से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, जिस ना तो मेरी मामा एंजल हैं, ना मेरे फादर कैनिबल आइलैंड के जो हैं वो किंग हैं, एंड ना तो मैं सारी ज़िंदगी मैंने समंदर में सफ़र किया है। फिर पिपी हंसती है और बोलती है मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं एक कॉन्गो शहर से आई हूँ जहाँ हर बंदा झूठ बोलता है। सुबह के 7 बजे से लेके रात दोपहर ढलने तक वहाँ सब झूठ बोल रहे होते हैं। तो हम मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं सच बोलूँगी? Then she said to her friends that अब अगर मैं कभी आपको झूठ बोलती हुई दिखूं तो मुझसे एक्सक्यूज़ करने के बजाय आप ये बात याद कर लीजिएगा कि मैं कॉन्गो में बहुत टाइम तक रही हूँ और मुझ में उनकी आदतें आ गई हैं। फिर वो बात घुमा के कहती है कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं या नहीं? Oh sure, said Tommy, and realized suddenly that this was not going to be one of those dull days. By the way, would you come and have some breakfast with me? asked Pippi. टॉमी फ़ौरन से उसको कह देता है कि हाँ हम दोस्त बन सकते हैं, ये रियलाइज़ करते हुए कि उसके जो आज का दिन है वो बाकी दिनों से बहुत अलग जाएगा और आने वाले दिन भी उसके मज़ेदार जाएंगे। पिपी इतने में उनसे पूछती है कि क्या तुम मेरे घर नाश्ता करने चलोगे? Why not? said Tommy. Come on, let's go. हाँ क्यों नहीं, चलो हम चलते हैं। Oh yes, let's, said Anika. आनिका ने भी बोला कि हाँ चलो चलते हैं। But first I must introduce you to Mr. Nilssons, said Pippi. And the little monkey took off his cap and bowed politely. वो कहती है लेकिन सबसे पहले तुम्हें मेरे मंकी से मिलना पड़ेगा जिनका नाम है मिस्टर निल्सन्स। What is the name of her monkey? Mr. Nilssons. Yes. And वो जो छोटा सा मंकी था उसने अपनी हैट उतारी और बहुत प्यार से आराम से पोलाइटली अपना उसने एक थैंक यू का जेस्चर दिया या फिर वेलकम का जेस्चर दिया। ओके स्टूडेंट्स, द स्टोरी इज़ स्टिल हियर। आई रियली होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी व्हेन एवर यू वांट, ठीक है। स्कूल आवर्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इसमें आपको क्या चीज़ समझ नहीं आएगी। आई विल ट्राई टू हेल्प यू as much as I can. Till then, take care. Allah Hafiz. Stay at home, stay safe, and do sanitize your hands and wash it as well. Bye.